Hello students, today we are going to revise the next chapter of physics, that is force and laws of motion. Now what is force? A push or pull on a body is called force. In order to move a body, we must either push it or pull it. Only then this body will move. And this push or pull on this body is called force. What are the effects of force? A force can move a stationary body. Suppose there is a football lying on the ground and you kick this football. What will happen? This football, it will start moving on the ground. So the force of your kick has moved a stationary football. A force can stop a moving body. Now after kicking the football, it starts rolling on the ground. And there is a force of friction between ground and the football. Due to this force, the football will stop after moving some distance. So force of friction is another type of force. Now this force, it has brought a moving football to rest. तो देखिए, जब आपने किक किया तो आपने फुटबॉल के ऊपर फोर्स लगाई और उस फोर्स की वजह से फुटबॉल ने मूव करना शुरू कर दिया। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि फुटबॉल और ग्राउंड के बीच में बनती है, उस फोर्स की वजह से ये फुटबॉल कुछ डिस्टेंस मूव करने के बाद रुक भी जाती है। तो फोर्स रुकी हुई चीज़ों को चला भी रही है, आप देख रहे हैं, और फोर्स की वजह से ही चलती हुई चीज़ें रुक भी रही हैं। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। If a force is applied in the same direction in which a body is moving, then the speed of body will increase. यानी अगर आप मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं, आपका फ्रेंड आपको पीछे से धक्का देता है, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपकी साइकिल की स्पीड इंक्रीज हो गई। एंड इफ अ फोर्स इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू विच अ बॉडी इज मूविंग, देन द स्पीड ऑफ बॉडी विल डिक्रीज। यानी अगर आप जिस डायरेक्शन में साइकिल चला रहे हैं, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपका फ्रेंड आपको फोर्स लगाता है, तो आपका क्या होगा? आपकी साइकिल की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। सो हियर यू कैन सी force can change the speed of a moving body. A force can change the direction of a moving body. In cricket, when a batsman hit a ball with his bat, then he exerts a force of his bats on the ball. Due to this force, the direction of the ball is changed, and a batsman can hit the ball in every corner of the ground. A force can change the shape of a body. If you compress a balloon between both your hands, you can see the shape of the balloon will be changed. So it is due to the force of your hands that the shape of balloon is changed. Balanced and unbalanced forces. If the resultant of all the forces acting on a body is zero, the forces are called balanced forces. यानी अगर किसी बॉडी के ऊपर लगने वाली सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो होगा, तो हम इन फोर्सेस को बैलेंस्ड फोर्सेस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बॉक्स एंड दिस बॉक्स इज लाइंग ऑन द ग्राउंड. On this box, force of gravity is acting in the downward direction. This ground is exerting a force on this box, and this is known as force of reaction in the upward direction. These two forces are equal and opposite. So these two forces will cancel each other. So the resultant of these two forces is zero. यानी अगर दो forces equal हैं, opposite हैं, तो उनका resultant हमेशा ही zero होगा. So this box will not move in the upward direction or in the downward direction. Now this is the force of push. हम इस डायरेक्शन से पुश कर रहे हैं इस बॉक्स को. So this is the force of push. Force of friction between ground and box will act in the opposite direction. देखिए, जब हम इस बॉक्स को धक्का देते हैं, तो ग्राउंड और बॉक्स के बीच में यहाँ एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बनती है. And this force of friction always acts in the direction opposite to the direction of force of push. यानी जिस डायरेक्शन में हम धकेल रहे हैं बॉक्स को, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगी. नाउ दीज टू फोर्सेस आर आल्सो इक्वल, सो दिस फोर्स विल बी कैंसिल्ड बाय दिस फोर्स, सो रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस इज आल्सो जीरो. सो दिस बॉक्स विल नॉट मूव इन ईदर डायरेक्शन. ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, इट विल रिमेन स्टेशनरी. सो as the resultant of all these forces is zero, so these forces are called balanced forces. There is an important point, students. If balanced forces are acting on a body, then if this body is at rest, it will remain at rest.
and if this body is moving uniformly it will keep moving uniformly. यानी कि अगर किसी बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्सेस बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, तो अगर ये बॉडी है, बॉडी रुकी हुई है, तो ये रुकी ही रहेगी, क्योंकि देखिए चलाने के लिए तो कुछ नेट फोर्स एक्ट होनी चाहिए ना बॉडी पे। नेट फोर्स तो लगी नहीं रही किसी भी डायरेक्शन में, तो ये स्टेशनरी रहेगी। और अगर बॉडी मूव कर रही है तो ये मूव ही करती रहेगी, क्योंकि रोकने के लिए भी तो कहीं ना कहीं हमको कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स तो ज़ीरो है सभी फोर्सेस का, तो ये बॉडी अगर मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी। तो अगर किसी बॉडी पर लगने वाली फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो बॉडी रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी, और अगर यूनिफॉर्मली चल रही है तो चलती ही रहेगी। Unbalanced forces. If the resultant of all the forces acting on a body is not zero, the forces are called unbalanced forces. This is a toy car. To understand this concept, let us consider this toy car. Now, force of gravity is acting in the downward direction on this car. Ground is exerting an upward force on this car, and this is known as force of reaction. So, upward force of reaction and downward force of gravity, these two forces are equal and opposite. यानी जितनी ये force उतनी ये force, और दोनों की direction opposite. So this force will cancel this force. So ये कार ना तो ऊपर की डायरेक्शन में ना तो नीचे की डायरेक्शन में जाएगी, जहां है वहीं रहेगी। Now force of push. Now this force of our push is greater than the force of reaction. यानी हमारे पुश की वजह से हम जो फोर्स लगा रहे हैं कार के ऊपर वो ज़्यादा है in comparison to the force of friction. So now the resultant of these two forces is not going to be zero. यानी इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो जीरो नहीं होगा, सिंस दिस फोर्स इज ग्रेटर देन दिस फोर्स, सो टॉय कार विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। क्योंकि देखिए ये ज़्यादा बड़ी फोर्स है इससे, तो जब इस फोर्स में से इस फोर्स को माइनस करेंगे तो नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो ये जो कार है ये अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। Now there is an important point for unbalanced forces also. If the forces acting on a body are unbalanced forces, then if a body is at rest, it can be brought to motion. And if a body is moving, it can be brought to rest. यानी अगर किसी बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्सेस अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं तो हम बॉडी को रेस्ट से मोशन भी ला सकते हैं, और अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन से बॉडी को हम रेस्ट में भी ला सकते हैं। Newton's first law of motion. A body at rest will remain at rest, and a body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion. देखिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो यूनिफॉर्मली ही मूव करती रहेगी, जब तक कि हम बाहर से कोई फोर्स ना लगा दें जिससे कि जो बॉडी रेस्ट में है वो मोशन में आ सके, और अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन से रेस्ट में आ सके। तो यानी रेस्ट से मोशन में लाना हो किसी बॉडी को, या फिर अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन से रेस्ट में लाना हो, इन दोनों के लिए ही हमको बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। अगर हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज अ पेन एंड दिस पेन इज लाइंग हेयर ऑन दिस पीस ऑफ पेपर। इफ नो फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस पेन विल नॉट मूव एट ऑल, चाहे कितनी देर भी रखा रहिए। बट इफ आई पुश दिस पेन बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑफ माई हैंड, इट स्टार्ट्स मूविंग। तो देखिए अगर ये रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहा। कब तक रहा? जब तक मैंने अपने हाथ से इस पेन के ऊपर फोर्स नहीं लगा दी। जैसे ही मैंने अपने हाथ से इस पेन के ऊपर फोर्स लगाई, इसने मूव करना शुरू कर दिया। सो अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। कब तक? जब तक कि इसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स ना लगा दें इसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए। लेट अस कंसिडर अनदर एग्जांपल, द सेकंड हाफ। व्हाट डज सेकंड हाफ मीन? सपोज यू आर राइडिंग अ बाइसिकल and suddenly you stop pedaling your bicycle. So what will happen? After moving some distance, your bicycle, it will stop moving. It will stop. Now why this moving bicycle stops? Reason is air resistance and friction between the tires of your bicycle and ground. देखिए जब आप साइकिल चला रहे होते हैं
और साइकिल का पेडल अगर आप लोग मारना बंद कर दें तो क्या होता है, कुछ देर बाद साइकिल रुक जाती है। तो साइकिल क्यों रुकती है? साइकिल रुकती है एयर रेजिस्टेंस की वजह से। जब आप साइकिल को चला रहे हैं तो एयर का रेजिस्टेंस क्या करता है, आपके मोशन को अपोज करता है। दूसरा, टायर और ग्राउंड के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बनता है और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी आपकी साइकिल के मोशन को अपोज करता है। तो अल्टीमेटली होता क्या है, साइकिल कुछ दूर पे जाकर के रुक जाती है। लेकिन तो इसका मतलब सेकंड पार्ट में यही था ना कि अगर किसी बॉडी को हमको रोकना है तो भी हमको बाहर से फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी हम किसी बॉडी को रोक पाएंगे। फॉर अ मोमेंट assume there is no force of friction and there is no air resistance. So what will happen? This bicycle, it will not stop moving, it will keep moving forever. यानी अगर आप कुछ टाइम के लिए मान लिया, ज्यूम कर लिया, हाइपोथेटिकल है ये बात, कि ना तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है टायर और ग्राउंड के बीच में, एक ना ही एयर का रेजिस्टेंस आपकी बॉडी के ऊपर लग रहा है, तो इस केस में क्या बाईसाइकिल रुकेगी? नहीं रुकेगी, क्योंकि ओपोजिंग फोर्स ही नहीं है। जिन फोर्सेस की वजह से बाईसाइकिल रुकती, हमने उन फोर्सेस को ही एलिमिनेट कर दिया, तो क्या होगा, ये साइकिल मूव करना नहीं रुकेगी एंड इट विल कीप मूविंग। एंड दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, जब तक कि हम बाहर से कोई फोर्स ना लगा दें जिसकी वजह से बॉडी रेस्ट से मोशन में आ सके, या फिर अगर मोशन में है तो मोशन से रेस्ट में आ सके। नेक्स्ट इज टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी to remain at rest or if moving to continue moving in a straight line is called inertia. देखिए हर बॉडी की एक टेंडेंसी होती है, और वो टेंडेंसी क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव ही करते रहना चाहती है, और इस टेंडेंसी को हमने नाम दिया इनर्शिया का। ग्रेटर इज द इनर्शिया, greater is the force required to bring a change in the state of rest or of uniform motion. यानी जिस बॉडी का इनर्शिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा फोर्स हमको लगानी पड़ेगी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए और मोशन से रेस्ट में लाने के लिए। अब इनर्शिया कैसे मेजर करते हैं? मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, यानी जिस बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा उस बॉडी का उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, और जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतनी ही ज़्यादा फोर्स हमको लगानी पड़ेगी उसे रेस्ट से मोशन में लाने के लिए या फिर मोशन से रेस्ट में लाने के लिए। नाउ देयर आर सम डेली और डे टू डे ऑब्जर्वेशन दैट आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। फॉर एग्जाम्पल, you are moving in a car and the car is stopped suddenly, so you fall in the forward direction. So what is the reason behind this? Because of the inertia, it is the tendency of your body to keep moving, but the car has stopped, so you fall in the forward direction. When you beat a carpet with a stick, the dust particles come out of it. यानी जब आप किसी कारपेट को छड़ी से पीटते हैं तो उससे धूल के जो पार्टिकल है बाहर निकलते हुए दिखते हैं, बाहर आ जाते हैं और कारपेट साफ हो जाता है। तो उसका क्या कारण है कि जब आप कारपेट को स्टिक से बीट करते हैं तो कारपेट टू एंड फ्रो, आगे पीछे जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। बट द डस्ट पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ द इनर्शिया हैज अ टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट। तो कारपेट ने आगे पीछे मूव करना शुरू कर दिया, लेकिन कारपेट में जो डस्ट पार्टिकल्स थे उनकी टेंडेंसी है कि वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं। तो कारपेट मूव कर रहा है, डस्ट पार्टिकल की टेंडेंसी इनर्शिया की वजह से रेस्ट में रहने की है, तो क्या होगा, डस्ट पार्टिकल अलग हो जाएंगे। कारपेट पीछे गया, डस्ट पार्टिकल रेस्ट में रहा, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, दे विल कम आउट ऑफ द कारपेट। सिमिलरली, इफ अ कार स्टार्ट सडनली देन यू फॉल बैकवर्ड, यानी अगर एकदम से कोई गाड़ी स्टार्ट होकर के चलती है तो हमारी बॉडी पीछे की तरफ गिरती है। तो उसका क्या कारण है, इनर्शिया। ड्यू टू इनर्शिया इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ योर बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट। इनर्शिया की वजह से आपकी बॉडी की टेंडेंसी है रेस्ट में रहने की, लेकिन क्योंकि गाड़ी सडनली चल पड़ी और आपकी बॉडी की टेंडेंसी है रुके रहने की, तो क्या होगा, बॉडी पीछे की तरफ गिरेगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मोमेंटम। Momentum is the product of mass and velocity. So if a body has some mass, it has some velocity, it will definitely have some momentum. Greater is the mass, greater is the momentum. Greater is the velocity, greater is the momentum. Momentum is denoted by P is equal to m into v.
एंड एसआई यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देखिए, हर वो बॉडी जिसका कुछ मास हो, जिसकी कुछ वेलोसिटी हो, तो उसका मोमेंटम जरूर होगा, और मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो अगर मान लीजिए किसी बॉडी का मास बहुत ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कोई ट्रक है, तो ट्रक का मास तो बहुत ज़्यादा है, तो बावजूद इसके कि उसकी वेलोसिटी कम है लेकिन मास ज़्यादा है, तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। सिमिलरली हो सकता है मास कम हो और वेलोसिटी ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ बुलेट मास इज लेस, bullet weighs in grams, but but its velocity is very very high. So what will happen? मास कम है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो मोमेंटम फिर भी बहुत ज़्यादा होगा। इट इज डिनोटेड बाय p इज इक्वल टू एम वी। p represents momentum, m represents mass and v represents velocity। और जो SI यूनिट होगी वो होगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। These are some assignment questions that you have to try. Thank you.